یہ ہم نے لاسٹ کیا تھا. آج ہم جو ہے اوبر نہیں چلانے جا رہے. بٹ اف یو لک ایٹ اوبر ایپ جو ہے ان کی, اس میں کتنے یوزر ہیں؟ بہت سارے, پوری دنیا میں ایک تو ٹھیک ہے, چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں, کہتے ہیں ڈفرنٹ نیشنلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں, پلس پھر رائڈر بھی ہیں اور ڈرائیور بھی ہیں, پھر اوبر فوڈ ڈلیوری بھی کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاٹس آف یوزرز جو اس کے ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اب اگر لاٹ آف یوزرز ہیں تو ہم نے ڈیزائن کرنا ہے اگر, تو ہاؤ ڈو وی میک ایوری ون ہیپی, سب کو کیسے خوش کریں؟ 15 لوگوں کی کلاس جو ہے وہ خوش نہیں ہوتی, تو ہر ایک کا اپنا مسئلہ نا. ایسے ہی ہے, کہنا نہیں ایسے کرنا, کہتے نہیں ایسے نہیں کرنا, ایسے کرنا. تو اتنے سارے لوگوں کو کیسے خوش کریں؟ حل ہے سر وہی جیسے ہم نے پورا پروسیس پڑھا ہے یوزر ایکسپیرینس کی بیس پہ, ہم لوگ ہر کسی کا سینیریو سامنے رکھیں گے اور پھر جو ان میں کامن چیز ہوگی اس پہ فرق ہوتی ہے. لائک رائڈرس کو دیکھیں گے کہ رائڈرس میں زیادہ میجورٹی کو کیا چیز جو ہے پرابلم کریٹ کر رہا ہے, پھر ڈرائیورس میں کون سی ایسی چیز ہے جو میجورٹی میں زیادہ ہے کہ ان کو مسئلہ ہو رہا ہے, پھر ہم اس کے اکارڈنگ چیزوں کو چینج کریں گے. اوکے. اس کے لیے جو اگر ہم ساروں کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس قسم کا کوئی ڈیزائن نہیں, ٹھیک ہے, جو سمجھ نہیں آئے کہ یار یہ گاڑی ہے, جیپ ہے, کیا ہے. سو سولوشن از کہ نہیں, آپ کوئی جو سیگمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, آپ سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کر لیں پاپولیشن کو, اینڈ دین ٹرائی ٹو سی کہ ڈفرنٹ لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ کیسے پوری ہو سکتی ہے. تو یو کین ڈیزائن فار اسپیسیفک ٹائپ آف یوزر بٹ ناٹ فار ایوری یوزر. تو ابھی جو ہم نے ایمپتھی میپ میں بھی بات کی کہ ہم کیا کرتے ہیں, انڈیویجول بنا کے پھر سیگمنٹ کر لیتے ہیں, اور سیگمنٹ میں جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں, ہم نے کسی طریقے سے یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے, ادروائز ہمارا کام جو ہے وہ مشکل ہوگا. کیسے کریں یہ کام, کیسے کریں؟ بڑا سمپل سا کام ہے, 1 2 3 اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میں یہ کہنا 1 2 3 پڑھیں گے تو بس ہو جائے گا. 1 2 3 میں کچھ کرنا ہو. اس کا مطلب یہ ڈیٹرمن واٹ ٹائپ آف یوزر وی سرو ود ریسرچ. ریسرچ سے یہ دیکھیں کہ کتنے قسم کے لوگ ہیں, کون کون ہیں, کتنی ویرائٹی ایگزسٹ کرتی ہے. تو ریسرچ آپ نے کی ہوگی تو پھر کیا ہوگا, آپ نے انالیسس کرنا ہے جو ہم نے کیا تھا. ہم نے دیکھا, ڈیٹا کلیکٹ کیا, ڈیٹا کو انالائز کیا, تو اس میں ہم نے اس ڈیٹا انالیسس میں ہم سیگمنٹ جو ہے وہ فائنڈ کریں گے. ایک ابھی ہم نے دیکھا تھا فینیکٹی میپ, ہم نے کیا کیا تھا, کیٹیگرائز کر رہا تھا چیزوں کو, اچھا تھیمز کون سی بنتی ہیں, کس کیٹیگری میں جاتا ہے, کس کیٹیگری میں. اور once you have identified segment the type of user, تو پھر آپ تھرڈ جو ہے وہ کیا کام کریں کہ ایک ماڈل بنائیں, and that model is called persona. ایک ماڈل بنائیں گے اور اس ماڈل کے تھرو جو ہے پھر ہم آگے. تو پاتھ کیا ہے کہ ریسرچ آپ نے کی ہے, انالیسس کریں, سیگمنٹ بنائیں اور پھر ایک ماڈل بنائیں, اور اس ماڈل کو جو ہے پرسونا کہا جاتا ہے. پرسوناز بنتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ ہم پرسوناز بنانا. لیکن پرسوناز بنانے کے لیے اسٹیپ کیا ہے, 1 2 یہ اسٹیپ کریں گے تو تھرڈ اسٹیپ جو ہے وہ کریں گے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ کیسے ہوگا, پرسونا بنے گا کیسے. اب ڈفرنٹ پرسونا جب ہم بنانے جائیں گے تو مارکیٹ سیگمنٹس نہیں ہیں. مارکیٹ سیگمنٹ سے کیا مراد ہوتی ہے کہ ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ ہم نے ڈفرنٹ, فار ایگزامپل اگر ہم رفاع یونیورسٹی کی بات کر لیں اور اگر اسٹوڈنٹ کے سیگمنٹس بنائیں تو ہمارے پاس 2 اسٹوڈنٹس بنتے ہیں, ایک وہ جو شاید ریسرچ اسٹوڈنٹس ہیں اور ایک وہ جو ریسرچ اسٹوڈنٹس نہیں. ہم ان کی بات نہیں کر رہے اور ہم اسٹیریوٹائپس کی بھی بات نہیں کر رہے. پرسونا از ناٹ اسٹیریوٹائپ. اسٹیریوٹائپ کیا ہوتا ہے؟ اسٹیریوٹائپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کسی کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے اور آپ اس کو ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں. تو وائڈلی ہے
But threats can oversimplify image of a particular type of a person. کہ اگر اس نے ایسا فار ایگزامپل جین پہنی ہوئی ہے تو ہم فوراً جین دیکھتے ساتھ کہیں کہ نہیں یہ تو اس قسم کا بندہ ہو چونکہ اس نے جین پہنی. اٹس اے ویری سمپلسٹک ویو. ٹھیک ہے, تو اسٹیریوٹائپ بھی نہیں ہے. اینڈ ہم ایوریج یوزر کی بات بھی نہیں کر رہے کہ اچھا ساروں کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر جو کامن چیزیں ہیں ہم اس کے حساب سے کچھ کر لیں گے. نہیں, رولز بیس بھی نہیں. اچھا, میں اس پہ بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ رولز نہیں. وجہ lots of students they make this mistake کہ وہ رول اٹھا لیں. جب پرسونا بنانے جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ رول اٹھائیں, حالانکہ رول پرسونا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کا اپنا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ نہیں ہم نے رول کو نہیں اٹھانا. رول نہیں ہو سکتا, پرسونا زیادہ نہیں ہوتا. سر رول کی نہیں سمجھ. ہاں, رول کی نہیں سمجھ. رول سے مراد یہ ہے کہ فار ایگزامپل اس طرح بھی دیکھیں فیکلٹی کے اندر بہت ساری فیکلٹی ہیں لیکن ان کے رول ڈفرنٹ ہے. رول کیا ہے, ایک انچارج ہے ایف آئی پی کا, ایک انچارج ہے شاید کوئی ایکٹیویٹیز کا. تو اب یہ کہیں ان کے رولز ہیں. تو پرسونا جب بنائیں گے تو ہم اس بات پہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے کہ اچھا ایک رول یہ ہے تو ایک رول یہ ہے اور ایک یہ رول یہ ہے. نہیں, ہم نے کسی اور چیز پہ بنانا ہے, وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کس پہ بنانا ہے. جس طرح ہر کسی کو کہتے ہیں نا کھانے پینے میں مسالہ پسند نہیں آتا, تو اگر آپ پاستا وغیرہ بنائیں تو اس میں بھی پھر ساس کا یہ مسئلہ ہو. دیٹس وائی دیر از اے ویرائٹی آف ساس. تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ڈال سکتا ہے. تو ایک رائٹ ورک فلو نہیں ہے کیونکہ اس کی نیڈ ہر اس کی, کیونکہ ہم نے یہ بات کی کہ ہم نے ڈیزائن کرنا ہے, ہر ایک کو کیسے خوش کریں. ہم نے خوش تو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آبویسلی ہر کوئی نہیں ہو سکتا. تو ہم نے سیگمنٹ جو ہے وہ بنانے ہیں اور وہ سیگمنٹ جو ہے وہ ہر ایک کے لیے جو ہے ٹھیک ہوگا اور وہ رائٹ فیچر اور ورک فلو جو ہے وہ ہوگا. ناٹ فار ایوری ون بٹ اسپیسیفک ٹائپ آف پرسونا. تو ڈفرنٹ لوگوں کے لیے ہم پھر ڈفرنٹ لوگوں کے لیے ڈفرنٹ سیگمنٹ کے لیے جو ہے پھر ہم ایک ڈیسائیڈ کریں گے تھا ان کو پھر ہم نہیں یہ لینا, ان کو ہم نہیں یہ لینا, ان کو ہم نہیں یہ لینا. ٹھیک ہے, اس کو ریلیٹ کر لیں. اگر آپ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں تو ریکال کریں تو ہم نے ایمپتھی میپ کی بات کی تھی. تو ہم نے اس میں جب پاتھ کی بات کی تھی تو ہم نے کیا کہا تھا, دو قسم کے لوگ جو پاتھ میں جاتے ہیں. کون سے؟ ایک جو رائٹ کے لیے جاتے ہیں لڑکی کے لیے, اور دوسرا جو لوگ مطلب ادھر روم اراؤنڈ کرنے کے لیے وہ اس طرح کے. ایک مطلب وہ ہے جو ایکسائٹر ہے, وہ ہے ہی رائٹس کے چکر میں کہ میکسیمم رائٹس کیسے لیں گے, دے آر ایکسائٹر. ادر ون دے آر ایکسپیرینس ہے, وہ سمپل گئے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے ایک اچھا وقت جو ہے گزرے گا, دوستوں یاروں کے ساتھ کپ بھی لگائیں گے, کھانا بھی کھائیں گے, ٹھیک ہے, اللہ گلہ کریں گے. ایک وہ ہے جو بالکل اسپیسیفکلی اس لیے جا رہے ہیں کہ نہیں میں نے سب سے مشکل ترین رائٹس جانا وہ لیں گے, زیادہ سے زیادہ رائٹس لیں گے. تو بالکل اسی طرح ڈفرنٹ جو لوگ ہیں ان کی ضرورتیں جو ہے وہ ڈفرنٹ ہوتی ہیں. تو ہم نے سیگمنٹس بنانے ہیں پورے لوگوں کے, اور پھر ان کے لیے ہم نے دیکھنا کہ اچھا ان کو ہم نے کیا. تو پرسونا جو ہے وہ کیا ہے, اس کو ہم اب ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں. پرسونا نام ہے archetype model that represent group of real users who have similar attributes. ٹھیک ہے, اب اگین اس میں سارے ورڈ جو وہ اہم ہیں آپ کو سمجھنے کے لیے بھی اور پھر استعمال کرنے کے لیے. کیا بات کر رہے ہیں ہم, کہہ رہے ہیں کہ ایک ماڈل ہے. اٹ از اے ماڈل, ماڈل آف ہوم, گروپ آف ریئل یوزرز. ٹھیک ہے, گروپ آف ریئل یوزرز کا ماڈل. اینڈ آلسو وہ ماڈل کس بیس پہ بن رہا ہے, who have similar attributes, ان کے ایٹریبیوٹ سملر ہیں. ٹھیک ہے, اگین ہم رول کی بات کریں, ان کے ایٹریبیوٹ سملر ہیں. مطلب اگر پارٹ والا سینیریو ہے تو دو ڈفرینٹ پرسوناز بنیں گے, ایک جو انرجی وائز رائٹس کے لیے جاتے ہیں, دوسرا جو Yes, because ان کا behavior different ہے, the way they behave it is different. ٹھیک ہے, and because of that behavior their need is different. تو پھر یہ ایج گروپ سے بھی کین بی ڈفرنٹ. Yes, possible ہے,
کہ ایج بھی افیکٹ کر رہی ہو, اس کے بیہیویئر میں جو فرق آ رہا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس ایج گروپ میں ہے, ٹھیک ہے. لیکن ضروری نہیں, وہ ہمیں دیکھنا یہی ہے کہ اچھا ایٹریبیوٹس جو ہے وہ کون سے ہیں اور ان میں سے سملیرٹی کہاں ہے اور کس حد تک. ماڈل آف کرنٹ ہیومن بیہیویئر, ایٹریبیوٹ کون سے, بیہیویئرل ایٹریبیوٹس ہیں, اسی لیے ان کے بیہیویئر کی بات کر رہے تھے. لیکن یہ آتے کہاں سے, یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ جی, یوزر ریسرچ میں ہم نے سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا, اس کی بنیاد پہ کریں. اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ یوزر ریسرچ بیکمز ویری کریٹیکل. اگر آپ نے وہ ٹھیک نہیں کی تو آپ کی ساری چیزیں آگے غلط بنیں گی, اور جب غلط بنیں گی تو آپ کی جو الٹیمیٹ پروڈکٹ بنیں گی وہ بھی ٹھیک نہیں بنے گی, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کو اس پہ تھوڑا فوکس کرنا. جی, کوئی سوال؟ کلیئر ہوگی بات؟ is a way to model, summarize, communicate, research about people. Okay. Emphasis again, going back to that, research करनी है, लोगों को जानना, और इनको आपने ऑब्जर्व किया, इसीलिए कॉन्टेक्चुअल इंटरव्यू में आप देख रहे थे कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों करता है, ऐसे क्यों नहीं करता. सिंथेसिस, वन पर्सोना जो है वो सिंथेसिस रिप्रेजेंट करेगा. क्या मतलब है, वही आपने डेटा एनालिसिस करके आपने कोई चीज ड्रॉ करी. और अगेन एक पर्सोना नंबर ऑफ रियल यूजर्स को कर रहा है, एंड यूनिक सेट ऑफ गोल्स हो गए. नाउ दिस इज सेकंड थिंग. हमने कहा कि एट्रीब्यूट की बेस पे हम पर्सोना बनाएंगे. मॉडल होगा रियल यूजर्स का, प्लस हर एक जो पर्सोना होगा उसका क्या है, एक यूनिक सेट ऑफ गोल होगा. दे वुड हैव वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ गोल. तो हर पर्सोना के गोल जो है वो डिफरेंट है, ठीक है. अच्छा, अहम बात फिर क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि आप उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन दे रहे हो या उसके डेमोग्राफिक्स दे रहे हो. इसीलिए मैंने जब आपने कहा कि एज, तो मैंने कहा मे बी डिपेंड करेगा, उसका बिहेवियर उसके साथ रिलेट करना. तो हम इस बेस पे नहीं करेंगे कि नहीं चूंकि ये फलां जगह रहता है, इसकी उम्र इतनी है, वो डेमोग्राफिक, उसकी बुनियाद पे नहीं हम कर रहे हैं. और हम बनाए इसीलिए रहे कि हमने डिफरेंट डिजाइन बनाने हैं, हर एक की जरूरत को, इन सेगमेंट की जरूरत को पूरा करना, नॉट वन इंडिविजुअल. सर, आप सेकंड पॉइंट एक दफा दोबारा बता सकते हैं? Synthesis के बात करें, represent a synthesis of a real number of users, ठीक है, who have been involved in data gathering. ये बिल्कुल वही बात है जो भी हमने पहले की. इसकी बेस क्या होगी, जो रिसर्च हमने की होगी, किन के ऊपर रिसर्च की होगी, रियल यूजर्स के ऊपर की होगी. इनसे हमने जब डेटा गैदर किया था, उनको हमने जब इंटरव्यू किया था, उनसे जब कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी की थी, तो उस वक्त जो सारा डेटा इकट्ठा हुआ था, उस डेटा को हम सिंथेसाइज करते, उस डेटा को हमने एनालाइज किया. एनालाइज करके हमने कुछ चीज़ें जो है वहाँ से एक्सट्रैक्ट की, जिससे ये चीज़ ऐसे. अब अच्छा पर्सोना क्या होगा, अगर हम ये कह रहे हैं कि पर्सोना अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि उसी से फिर आगे डिज़ाइन. अच्छे पर्सोने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, व्हाट इज अ गुड पर्सोना. पर्सोनास आर नॉट फिक्शनल गेसेस, गेसेस नहीं है, गेस वर्क नहीं है. इसका क्या मतलब हुआ, क्या किसी चीज पे बेस करेगा ना. गेस वर्क तो गेस तो होती है बस ऐसे ही जो है हवा में जैसे जाए. मतलब जो रिसर्च है उस पे बेस्ड होना चाहिए. इट शुड बी बेस्ड ऑन द रिसर्च. एक्चुअल जो चीजें आपने इकट्ठी की हैं उसके ऊपर होना चाहिए, गेस वर्क नहीं होना चाहिए. अच्छा वो फलां तो ऐसे ही करते होंगे, नहीं. यू नीड टू बैक इट अप बाय रियल डेटा. रियल डेटा के साथ लिंक हुआ होना चाहिए, ठीक है. इसका मतलब ये है कि जब आप पर्सोना बनाएंगे तो आपसे ये सवाल होगा, ये कैसे बनाया, कैसे आपने ये तय कर लिया कि ये ऐसा है, व्हाट इज द लिंक विद योर डेटा विच यू कलेक्टेड, ठीक है, जो आपने ऑब्जर्वेशन की थी उसके साथ इसका क्या था. रिफ्लेक्ट रियल यूजर पैटर्न, ठीक है, नॉट रोल. फिर दोबारा वही मैंने भी पहले भी बात की, रोल नहीं होने, ठीक है. आपने स्पेसिफिक रियल उसका पैटर्न देखा.
फिर focuses on the current state. How user interact with the product, not the future. How user will interact with the product. अभी वो कैसे करता है, क्योंकि अभी तो आपने डिजाइन करना है ना, अभी आपने डिजाइन तो नहीं किया, तो आप पहले तो नहीं बता सकते कि ऐसे करेगा। हाँ, आप अभी कह रहे हैं कि अभी जिस तरह वो बिहेव करता है, वो कैसे बिहेव करता है, वो इस तरह बिहेव करता है। उस बिहेवियर को सामने रख के आपने उसके लिए डिजाइन बनाया, ठीक है। तो अभी उसकी करंट स्टेट है, उसके ऊपर फोकस करता है, अभी कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल आप इवेंट की हम ऐप के लिए हम डिजाइन करें तो अभी से फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप इवेंट प्लानर की बात कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि जी अच्छा लेट्स से जो शादी ब्याह अरेंज करते हैं, तो अब लोग आते हैं उसमें मुख्तलिफ, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल इसीलिए मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू एक्चुअली सेट व्हेन दे आर प्लानिंग, ठीक है। व्हेन दे आर प्लानिंग यू हैव टू सेट एंड ऑब्जर्व कि ये कैसे करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मतलब ये हो सकता है दो डिफरेंट बिहेवियर, एक कुछ होते हैं लोग जो 11th आवर पे जाके करते हैं, ठीक है, बिल्कुल 11th आवर पे जाके करते हैं और फिर शोर मचा देते हैं, फिर वो जल्दी करो, ये बिफोर ऑन अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं पता लगा ये क्या हुआ, इसका क्या। कुछ होते हैं जो बड़े आराम से करते हैं, बहुत पहले से प्लान करते हैं। फिर इसी तरह कुछ लोग बड़े मेटिकुलस किस्म के होते हैं, वो एक एक चीज को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं। कुछ शायद ऐसे लोग होंगे जो ऐसा नहीं करेंगे। तब वो कब पता लगेगा, जब अभी वो किस तरीके से करते हैं। तो यू हैव टू स्पेंड टाइम विद देम एंड देन पिक देम अप। तो आप अभी ये नहीं करें कि अच्छा अगर इसको मैंने ऐप दे दी और उस ऐप में मैंने ये डाल दिया तो ये इसको कैसे इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो अभी किस तरीके से वो कर रहे हैं, क्या कोई डायरी बनाई हुई है, अपने फोन के ऊपर रख लिया हुआ है, वॉइस मेमो रख लिए हुए हैं, क्या किया, ठीक है, या नहीं रखा हुआ, दिमाग में ही रखा हुआ। तो अभी डिफरेंट तरीके से वो कर रहे हो, कर तो रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो आपने करंट स्टेट पे जो फोकस किया। फिर इसी तरह कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है, ठीक है, कि हमने उनको, इसीलिए हम कह रहे हैं कि नहीं एक्चुअल में देखना है, एक्चुअल में वो कैसे करता है। तो इट इज नॉट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का होना जो है वो जरूरी है कि हम बिल्कुल स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट से हटके अगर वो कोई चीज कर रहे हैं तो हमारा उससे कंसर्न नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल वो एक बंदा है जो प्लानिंग कर रहा है, लेकिन वो अपनी जॉब की प्लानिंग कैसे करता है, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वो हमारे कॉन्टेक्स्ट से रिलेट नहीं है, ठीक है। हम उसकी जॉब की प्लानिंग तो नहीं देख रहे हैं ना, हम तो उसकी इवेंट की प्लानिंग देख रहे हैं। तो दैट्स हाउ यू नीड टू फोकस। मेरा कॉन्टेक्स्ट जो है उसके अंदर रह के मैंने बात करी, क्योंकि हो सकता है वो 10 चीजें और कर रहा हूँ, हमारे उससे तो लेना देना नहीं। जैसे वो एम्पैथी मैप में हमने कहा कि बोल तो वो सब कुछ रहा है बट उसको आप देखते हैं। यस यस एग्जैक्टली। तो बहुत सारी चीजें कर रहा होगा, लेकिन आपने किस चीज पे गोल रखा होगा, आपका फोकस क्या है, उसके हवाले से ही हमने बात करनी है, उसी को हमने साथ रखना। अब आ जाते हैं कि जी जो एट्रीब्यूट्स की बात की थी कि पर्सोना किसकी बेस पे बिल्ड होगा, एट्रीब्यूट की बेस पे। तो वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, वो बिहेवियर एट्रीब्यूट्स, कि लोग बिहेव कैसे करते हैं, वो हम फिर डिफरेंट अंदाज से जब देखते हैं। व्हाट अफेक्ट्स अ पर्सन बिहेवियर इन अ सिचुएशन, ठीक है, क्या चीजें इफेक्ट करती हैं किसी एक सिचुएशन में, और वो सिचुएशंस कौन सी हैं। इज ट्राइंग टू कंप्लीट सम टास्क, टास्क कंप्लीट करना चाह रहा हूं, तो उस वक्त क्या चीज उसको इफेक्ट करती है। इज अचीविंग देयर गोल, इज सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम, इज इंटरैक्टिंग विद योर प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। तो हम उस वक्त जो है वो देख रहे होंगे कि ये क्या चीजें हैं जो उसको असरअंदाज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जब आप कोई टास्क कंप्लीट करने जा रहे हैं तो आपको कुछ चीजें जो है वो करनी होंगी, कुछ चीजों की जरूरत होगी। अब वो अगर ऑर्गेनाइज है तो क्या होता है, if somebody is organized तो क्या होता है, उसको पता होता है कि मेरी कौन सी चीज कहाँ है, तो आराम से निकालता है और अपना काम करेगा।
और जो ऑर्गेनाइज नहीं होते वो क्या करते हैं, ढूंढते रहते हैं, मिलती नहीं। फिर ये भी सूरत हो जाती है, पता लगता है कि हैंड बैग तो यूँ पूरा उल्टाया है, उसमें से सारा कुछ निकाला है, वो किधर गई है मेरी क्लास। तो अब आपको नजर आ रहा है ना जैसे ये काम करते हुए इसका बिहेवियर क्या है, पैनिक हुआ है, ठीक है, सिस्टमैटिक काम करता है, हैज़र्ड में काम करता है, तो यू आर पिकिंग दोज एट्रीब्यूट्स कि ये ऐसे हो रहा है। ये एट्रीब्यूट की एग्जांपल है, इसको आप समझने के लिए कि फॉर एग्जांपल एक पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज करने की बात, हमारे ذاتی यानी कि जो होता है ना, तो एक पूरी उसकी बड़ी उसकी बात नहीं करें, किसी कंपनी के फाइनेंस की बात नहीं करें, इंडिविजुअल जो है वो मैनेज कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको एट्रीब्यूट्स पिक करने के लिए इस तरह के सवाल ही करते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंसेस, क्यों मैनेज करते हैं, हाउ फ्रीक्वेंटली डज अ पर्सन मैनेज पर्सनल फाइनेंसेस, टूल्स कौन से इस्तेमाल करता है, इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करता है, एंड सो ऑन। ये एग्जांपल है किस तरह के सवाल करें, कब करेंगे, जब आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, जब आप इंटरव्यू कर रहे हो, तो सवाल जवाब कॉन्टेक्स्ट के अंदर बेशक इंक्वायरी आप कर रहे हो, वो सवाल जवाब में ही आपको ये चीज़ें पता लग रही होंगी, अच्छा ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगेन हमने कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी में देखा था कि जी अच्छा कितने रुपए की शॉपिंग करते हो एक वीक के लिए, ठीक है, तो आपने उस वक्त ये सवाल पूछा, ठीक है, आप जो है वो किस किस्म के उस पे जाते हो, ग्रोसरी स्टोर पे, ठीक है, क्यों जाते हो, तो वो उस वक्त आप इस तरह के सवाल कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहले सवाल को देखें, व्हाट इज द रीजन फॉर मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंसेस, तो दे कैन बी मेनी रीजंस, डिफरेंट पीपल दे कैन गिव यू डिफरेंट रीजन। तो पॉसिबिलिटी क्या है, फॉर एग्जाम्पल दे में से कि हम ट्रैक करते हैं कैश फ्लो, ठीक है, कैश फ्लो को ट्रैक करने के लिए मैं पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज कर रहा हूँ, मैंने बिल भी देने हैं और मुझे पैसे आने भी हैं, तो मेरी कोई ये नहीं है कि मंथ में एक दफ़ा सिर्फ इनफ्लो आएगा, पैसे आएंगे, हो सकता है कुछ पैसे 10 तारीख को आए, कुछ हो सकता है 20 तारीख को आए, मैंने कोई शॉप पे लगाई हुई है, मेरे फलां जगह से भी पैसे आते हैं और मैंने फिर आगे भी देने होते हैं, तो मैं कैश फ्लो को ट्रैक करना। एक रीज़न ये हो सकती है, द रीज़न आई एम डूइंग इट सेविंग अप फॉर समथिंग, ठीक है, मैंने कुछ प्लान किया हुआ कि जैसा मैं प्लान चीज़ खरीदूंगा, मैं 2-3 महीने कुछ सेविंग करूं ताकि फिर जो है वो चीज़ खरीदी जा सके, तो दिस इज अ डिफरेंट रीजन। प्लानिंग अ पर्सनल बजट, ठीक है, कि बजट को मैं पूरे बजट को मैंने चूंकि प्लान करना होता है, मैं इसलिए इसकी जो है वो पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करता हूं। तो अब ये डिफरेंट रीजंस हैं, इसका मतलब ये है कि इन रीजंस की वजह से लोग डिफरेंटली काम करें, उनके कंसर्न भी डिफरेंट होंगे ना, तो इसलिए जो है आपको ये उनसे एट्रीब्यूट्स है वो लेंगे। और पर्सनल प्रोफाइल जो है फिर अगर हम देखें तो उसमें नीड्स, गोल्स, एक्सपेक्टेशंस आएंगे, हर इंडिविजुअल की नीड्स क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, गोल्स क्या है, वो भी आप सवालों से पूछ के जो है उनसे बात करें। What does the person want to achieve? You need to ask these kind of questions. Why does a person perform a specific action? Again, उसको हमेशा रिकॉल करें जो हमने एग्जाम्पल देखी, ठीक है, वो ऐसे क्यों करता है, ऐसे क्यों होता है, तो हम सवाल किए भी कॉन्टेक्चुअल इंटरव्यू में पढ़ना, ऐसे क्यों किया, and that's what really we were trying to understand. What does the person expect from an interaction with your product and content? उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो क्या समझ रहा है कि क्या होगा। What need does the person wants to satisfy? उसका प्रॉब्लम क्या है, उसकी कोई नीड है ना, तो नीड तो इसीलिए कि वो कुछ नहीं कर पा रहा, तो क्या नहीं कर पा रहा है जिसको आप चाहते हैं कि वो सेटिस्फाई। अब अगर इस एग्जाम्पल को देखें समझने के लिए एट्रीब्यूट्स, तो हमने ये बात की थी हाउ फ्रीक्वेंटली डज द पर्सन मैनेज पर्सनल फाइनेंस। अब इस एट्रीब्यूट को अगर हम देखें तो हम कह रहे हैं कि डज नॉट मैनेज फाइनेंसेस एंड कॉन्स्टेंटली मैनेजेस फाइनेंस। तो जब आपने लोगों से, डिफरेंट लोगों से पूछा तो पता क्या लगा कि ये जो बंदा है ये इस साइड पे,
کہ نہیں مینج کرتا اور یہ بندی جو ہے وہ کانسٹنٹلی مینج کرتا. تو اب یہ ہم نے کیا ایک بیہیویئر ایٹریبیوٹ رکھا. پھر اسی طرح دوسرا بیہیویئر ایٹریبیوٹ, تیسرا. اب اس کے اوپر ہم نے کیا دیکھا, یہ دیکھیے کہ موسٹلی لوگ کہاں کال کر رہے ہیں, سارے اسکیٹرڈ. ٹھیک ہے, اس پہ کیا ہے, اس پہ دو ایکسٹریم ہم نے ڈال دی کہ جی چاہیے. اسی طرح یہ دو لوگ ہیں, کیرول اور ایما, جان اور سدن, اسٹیو اور ایلس. تو یہاں پہ دو لوگ ہیں, یہاں پہ ایک ایک بندہ. ٹھیک ہے, جان اور کیرول. تو اب آپ نے اس کی بنیاد پہ کیا کرنا ہے, کچھ سیگمنٹیشن کرنی. یہ تو انڈیویجول ہے نا, انڈیویجول کو اس کا مطلب یہ ایٹریبیوٹس کو میئر کرنا ہے. میئر کرنے کے بعد ہر انڈیویجول کو کہیں پلیس کرنا کہ یہ کہاں پلیس ہوتا ہے. جب پلیس ہو جائے تو اب آپ نے کہنا کہ اچھا سیگمنٹ کیسے بنا. تو اگر آپ نے دیکھیں یہاں پہ دیکھا کہ اچھا چونکہ دونوں ایکسٹریم پہ بھی ہیں, تو اگر ہم ان کو ٹارگٹ کر لیں, جان اور سٹن جو ہے وہ اسٹین جو ہے وہ یہاں پہ اس کو اٹھا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے بندہ, اس کا بیہیویئر ایک ماڈل بنتا ہے, ایک پیٹرن جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے. تو آپ نے ایک پرسونا اس کا بنا لیا, ایک آپ نے جو ہے وہ جان کا بنا لیا. تو آپ کے دو پرسونا سے دو قسم کے سیگمنٹس آپ نے بنا لیے, اور آپ نے کہا کہ اچھا ان کو ہم کیٹر کریں گے. ٹھیک ہے, اور اگر ان کو کیٹر کریں گے تو ہمارے موسٹلی جو یوزر ہوں گے وہ بھی کیٹر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ لوگ بھی کیٹر ہوں گے. آگے چلتے ہیں, ایک اسپیسیفک ایگزامپل. یہ تو جنیرک والی بات ہے جو ہم پروڈکٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اس کی بھی دیکھتے ہیں. پیٹرن آئیڈینٹیفائی کیسے کریں, لسٹ آل دا بیہیویئر ویریبل, لسٹ کریں. اچھا یہ پہلے نہیں لسٹ ہوگی, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے سے لسٹ بنی ہوگی, نہیں. جب آپ ریسرچ کریں گے وہ ڈیٹا آئے گا تو اسی میں سے آپ کو پک کرنا ہے, اور پک کر کے پھر ایک لسٹ تیار کرنا کہ اچھا یہ ایٹریبیوٹس ہمارے پاسبل ہیں, اور پھر ان کے اگینسٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ لوگ کیسے بیہیو کر رہے ہیں ڈفرنٹ. دوسری بات یہ کہ موسٹ ویریبل ریپرزینٹڈ ایز اے رینج ود ٹو اینڈس. ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ بالکل یس اور نو کی صورت میں ہوتے ہیں, نہیں, کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے. موسٹ آف دا ٹائم, فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ 11th آور پلان ہے تو کہیں کہ نہیں میں موسٹلی تو کام نہیں 11th آور پہ کرتا, یہ بس مجھے 11th آور میں کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں وہ اس طرح کا ہے نہیں. ٹھیک ہے, کبھی کبھی ایسے ہو جاتا, کبھی ایسے ہو جاتا. تو وہ شاید آپ کو کہانی بھی سنائے گا کہ نہیں وہ میں نے تو اپنے 3 بچوں کی شادیاں کی ہیں, یہ مسئلہ نہیں ہوا تھا, یہ اس کی دفعہ یہ مسئلہ ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں وہ نارمل ایسے نہیں ہیں, یہ اس دفعہ ایسے, اور کیوں ہوا ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی دو اینڈ کے اوپر ہی جو ہے وہ رہے گا. فار ایگزامپل فریکوینسی آف شاپنگ جو ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں شاپنگ کے, اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اور بڑا پلان کیا ہوتا ہے, نہیں مہینے میں 1 دفعہ جانا یا 2 دفعہ جانا بس, جب ضرورت ہوگی بس. تو فرق ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم جب ضرورت پڑتی ہے چلے جاتے ہیں. اب ایک وہ ہے جو پلان کرتے ہیں, ایک یہ جو ضرورت کے تحت جاتے ہیں, ایک وہ ہے جو ہر وقت جانا چاہتے ہیں. ایون شاپنگ نہ ہے کچھ پسند آ جائے, ہاں کیا پتہ کچھ پسند ہی آ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رینج کے اندر جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے. ڈیموگرافک ویریبل دیٹ سیمز ٹو بی افیکٹ بیہیویئر. تو آپ دیکھیں ضرور, اسی لیے جب یہ اچھی بات کی تھی میں نے کہا تھا مے بی, لیکن ضروری نہیں, ضروری نہیں. بٹ یس یو شوڈ سی کہ جی کیا ایج افیکٹ تو نہیں کر رہا, جینڈر افیکٹ تو نہیں کر رہا, سم ٹائم دس ہیپن دس پر. کلب ٹوگیدر اکراس ملٹیپل ویریبل, پھر آپ کو ان کو اکٹھا کرنا. اچھا بھی ملٹیپل ویریبلس میں کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک جیسا بیہیویئر, اس بیہیویئر کو اٹھا کے آپ نے پرسونا. یہ ایک فٹنس ایپ ہے, اس کے حوالے سے یہ بیہیویئر ایٹریبیوٹس جو ہے وہ بنائیں گے, اور اس میں یہ دیکھا گیا. اس میں جب لوگوں کو انٹرویو کیا کہ اچھا آپ کیوں جاتے ہیں جم, کیوں جم کرتے ہیں,
तो मुख्तलिफ लोगों की रीजंस मुख्तलिफ होती हैं, तो जो एट्रीब्यूट बने वो क्या है कि वेट लॉस वेट गेन। तो एट्रीब्यूट क्या है? वेट मैनेजमेंट। बिहेवियर जो एट्रीब्यूट था वो क्या है कि वेट मैनेजमेंट के लिए करता हूँ मैं, मेरा ये बिहेवियर इसलिए। तो उसमें जो रेंज है वैल्यूज की वो क्या है कि एक वो है जो वेट गेन करने के लिए करता है, एक वो है जो वेट लूज करने के लिए करता है। लेकिन वेरी क्लियर यू कैन सी दैट कि ज्यादा लोग वेट लूज करने के लिए, और एक जो है वो कहता है ना गेन करने के लिए ना लूज करने के लिए, मैं मेंटेन करने के लिए करता हूं। ठीक है, फिर इसी तरह एक्टिविटीज लेवल, स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग, नहीं एक्टिव नहीं, एक्टिव। एंड गोल्स, मोटिवेशन जो है वो आपकी क्या है? शॉर्ट टर्म गोल्स हैं आपके। शॉर्ट टर्म क्या होता है कि अच्छा वो शादी होने वाली है तो अब जरा 3 महीने जो है वो, हाँ ये होता है ना, वैसे ही एक्साइटमेंट में जाते हैं, कुछ दिन किया और फिर उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक होता है कि नहीं अच्छा ये अभी इवेंट आ रहा है ना तो अब सारे क्या करें, ठीक है सारे क्या कहेंगे चलो जी कर लेते हैं, वरना नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो बड़े कंसिस्टेंट होते हैं, सर्दी गर्मी बारिश मर्जी हो जम जाना। ठीक है, मतलब मेरे अपने बेटों में दोनों में फर्क। छोटा बेटा जो है वो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता जिम, तो उसको मैं मजाक करता हूँ, तो कहता हूँ खैर जिम में क्या हो रहा है, कि कहते कि नहीं मैंने जिम नहीं छोड़ना। तो जैसे आप क्लास नहीं छोड़ते। हाँ तो बड़ा बेटा जो है वो बहाने ढूंढ रहा होता है कि नहीं वो आज मैं थोड़ा थक के आई यूनिवर्सिटी से तो आज मैंने नहीं जाना, आज जो है ना वो कल मैंने ज़्यादा वो कर ली थी, आज मेरी कमर में दर्द हो रही है। तो उसको यू हैव टू सॉर्ट ऑफ पुश कि नहीं मत जो है वो बैठो जाओ। तो छोटे को कहने की जरूरत नहीं है, उसने जो है कि नहीं मैंने तो जाना, चल आदमी जाना। तो डिफरेंट जो है मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन जो है एप्टीट्यूड्स क्या है, आपको हेल्थ का नॉलेज है तो आपने देखा कि नहीं कुछ लोगों को है बेसिक नॉलेज है, मोस्टली लोगों को कोई नहीं पता नहीं है कि अच्छा क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज से किस पे फर्क पड़ता है, सारी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें। तो डिफरेंट बिहेवियर वेरिएबल्स है वो उन्होंने देखे और उसके बाद उन्होंने इंडिविजुअल लोगों को प्लेस किया है, कैसे इस एट्रीब्यूट पे यहाँ पे, इस एट्रीब्यूट पे यहाँ। एंड देन क्या किया, क्लब टुगेदर करने की कोशिश की। अच्छा हम इनको इकट्ठा करें तो क्या बनता है, कोई बनता है ऐसे सेगमेंट्स बनते हैं जिनको हम मॉडल कर सकें। तो वो दे सॉ दैट कि अच्छा एक ये ग्रुप बन रहा है और एक ये ग्रुप बन रहा है, तो हम इतना बड़ा ग्रुप बना लें, ये क्या करें। इसी तरह यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अच्छा अब इसमें देखने की चीज़ ये होती है कि ये लोग एक ही तरह के कहाँ बार बार एक ही जगह नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें, ये वाला बंदा और ये वाला बंदा आपको अमूमन करीब करीब नजर आएंगे। ठीक है, ये करीब करीब नजर आ रहे हैं सारे वेरिएबल। तो इसका क्या मतलब है कि ये एक ही तरह के हैं, तो इनको हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू। कि अच्छा देखेंगे कितनी दफा होगा। अभी हमने कहा कि जी 2 दफा ये होगा, ये वाले जो लोग हैं ये 3, ये 2 दफा 2 वेरिएबल्स पे बिल्कुल क्लोज है। ठीक है, तो इनको आपने ये लिख दिया कि अच्छा ये वाला काम जो है 2 दफा। फिर आपने जब इन 2 को देखा तो ये भी 2 दफा एक जगह आ रहे, एक जगह ये आ रहे और कहाँ आ रहे, और ये 2 कहाँ इकट्ठे आ रहे हैं, ये। ठीक है, तो ये 2 दफा यहाँ पे इकट्ठे आ रहे। इनको जब देखा तो ये भी 2 दफा आ रहे, इस तरह ये 4 दफा आ रहे। ठीक है, तो इसकी बेस पे आपने कहा कि अच्छा हम कोई पर्सोना जो है वो पैटर्न बना, और नंबर ऑफ क्लोज अकरेंसेस जो है वो ये है, बिल्कुल करीब करीब है। तो इसकी बुनियाद पे आप करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा फर्दर हम देखेंगे इनके नीड्स गोल्स कितने मिलते हैं आपस में, और फिर जाके जो हम एक पर्सोना जो है वो बना देते। कितने पर्सोना बनाए, बहुत ज़्यादा नहीं होते, कम होते हैं, थोड़ा सेट जो वो रखते हैं, स्मॉल होते हैं। मैजिक नंबर कोई नहीं है, मैजिक नंबर नहीं है। बट फॉर एग्जाम्पल जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, आई वुड से 3 to 4 पर्सोना दे आर मोर देन एनफ। ठीक है, दे शुड।
अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये मतलब कोई फिक्स कर दिया मैंने, मैं अमूमन बता रहा हूँ कि अमूमन इस तरह होगा, बट ऑफ कोर्स आपको अपनी रिसर्च को देखना, उसके रिसर्च की बेस पे आपने चीज़ें देखनी है कि हाथी कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, 3 बनते हैं, 4 बनते हैं, कितने बनते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यू आर क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रॉनिक फैमिली कैलेंडर, योर persona set might include a carrier mom, a stay home mom, a carrier dad and a teenager. डिफरेंट इनके बिहेवियर जो है वो डिफरेंट है। तो 4 हैं। अभी हमने बात की कि उनके गोल होते हैं, तो गोल क्या होता है, गोल पे हम बात में जाएंगे। अभी तक जो बात की थी वो समझ आ गई, क्लियर? ठीक है, अभी कुछ लोग बता देंगे एटीट्यूड्स क्या होता है, एटीट्यूड्स क्या होता है बताएं। सर जो उनके बिहेवियर एटीट्यूड्स क्या होता है? कौन से फैक्टर होते हैं जो किसको असरअंदाज करते हैं? बिहेवियर। ठीक है, तो वो फैक्टर्स हैं जो भी वो काम कर रहे होते हैं उनके बिहेवियर पे वो फर्क डाल रहे हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो अभी जैसे हमने अगेन पीछे देखा, यहाँ पे क्या चीज़ डिफरेंट करी कि उनका बिहेवियर वेट मैनेजमेंट में क्या है। ठीक है, तो वो इफेक्ट कर रहा है उनके बिहेवियर, ये फैक्टर इफेक्ट कर रहा है, या तो वो वेट लूज करने के चक्कर में है, या मैनेज करने के, या गेन करने के। तो वो फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं उनके बिहेवियर को, वो हमारे एटीट्यूड। ठीक है जी, ओके। गोल, गोल क्या होते हैं? गोल क्या होता है? गोल्स जो हम मतलब अपना हमारा एक एम होता है या मोटिव होता है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, वो गोल होता है। वो चीज़ जिसके लिए सारे चीज़ें पुकार रहे हैं। ठीक, यस, ये कहेंगे हम हासिल क्या करते हैं, हमने हासिल क्या करना। तो वो और बुनियादी तौर पे हम कुछ चीज़ें जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो देयर इज रीजन बिहाइंड, देयर आर सर्टेन गोल्स वी वांट टू अचीव। ठीक है, कुछ हासिल करना चाह रहे होते हैं, अदरवाइज तो हम एफर्ट वो नहीं करेंगे। तो लेट्स लुक एट दिस कि गोल्स का क्या ताल्लुक है, क्योंकि हमने कहा था कि गोल्स उनके हर पर्सोना के डिफरेंट हैं, सेट ऑफ गोल्स है। तो गोल्स की डिफरेंट टाइप हैं। एक लाइफ गोल होते हैं। लाइफ गोल्स क्या होते हैं? जो पूरी जिंदगी आपके साथ होते हैं। तो लाइफ गोल्स ये कॉन्टिन्यूसली चलते हैं आपके साथ, सारी जिंदगी आपके साथ चल रहा है, ये ऐसा नहीं है कि खत्म होता। फिर एक्सपीरियंस गोल था कि आप क्या चाह रहे हैं कि आपको कैसा फील हो। ठीक है, जब भी आप कोई चीज एक्सपीरियंस करें तो आपको कैसा फील, वो गोल अलग है। एंड देन देयर एंड गोल्स। ठीक है, एंड गोल्स क्या है कि जो चीज आप कर रहे हैं उससे क्या आप अचीव कर रहे हैं। अभी जो काम कर रहे हैं वो आपको किसी एंड की तरफ लेके जाएगा, वो एंड क्या आपका है, दैट इज एन एंड गोल। हम जो पर्सोना की बात कर रहे हैं उसमें मोस्टली क्या होता है, वी आर कंसर्न अबाउट एंड गोल। ठीक है, वी मे बी बट रेयरली कंसर्न विद द लाइफ गोल एंड एक्सपीरियंस गोल, लेकिन मोस्टली हम एंड गोल के साथ कंसर्न होते हैं। एंड गोल इनके क्या? ठीक है, तो गोल्स हमें जो यूज करने हैं वो राइट यूज करने हैं। इसका क्या मतलब हुआ?
जिस तरह हमने राइट प्रॉब्लम की बात की थी कि राइट प्रॉब्लम का क्या मतलब है कि जो असल में प्रॉब्लम है उसकी हम बात करें, सिम्टम्स की बात नहीं करें, कहीं सिम्टम्स को आप प्रॉब्लम मत समझें। तो इसी तरह राइट गोल से मुराद ये है कि जो मकसद है आपका यूएक्स डिज़ाइन का, उसके हवाले से राइट गोल्स कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। तो 3 to 4 अगेन टिपिकल होगा। इसका मतलब ये है कि आपके अगर 3 पर्सोना बन रहे हैं और टिपिकली हर पर्सोना के 3 से 4 गोल होंगे, तो आपके पास टोटल कोई 9 से 12 गोल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। कीप इन माइंड गोल्स एंड टास्क आर डिफरेंट, ये भी अगेन बड़ी अहम बात है। ठीक है, मीन एंड एंड वाली बात है। टास्क क्या होता है, आपको काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम क्या हासिल करने के लिए कर रहे हैं, दैट इज द गोल। तो व्हेन यू स्पेसिफाई कि जी ये इसका ये गोल है, तो मेक श्योर दैट इट इज नॉट द टास्क दैट पर्सोना इज डूइंग, वो गोल होना चाहिए। ठीक है, वो अचीवमेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उस गोल के लिए, Yes. स्टेप होता है। हाँ जी, ठीक है। तो टास्क जो है वो आप नहीं दे रहे होंगे, आप एक्चुअली उसका गोल दे रहे हैं, तो उसने हासिल किया। ठीक है, टास्क आर नॉट एंड्स themselves, not just an any goal will do though. It's important to understand that which type of will help you to make design decision. जो भी हमने डिफरेंट टाइप्स की बात की उसमें, लेकिन मैंने कहा मोस्टली आपके पास एंड गोल। लाइफ गोल्स आर ओनली इक्वेशनली यूज्ड इन डिजाइन। ठीक है, ये मेरे बात अब कम जो है वो होगा कि आपको इस्तेमाल करना पड़ेंगे, मोस्टली आप एंड गोल्स पे जो है अच्छा करेंगे। लाइफ गोल शायद इस तरह की सिचुएशन में जो है वो आप इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं। तो राइट गोल्स क्या है, एक्सपीरियंस गोल्स है। अभी हमने बात की कि क्या है कि आप जब इस्तेमाल करेंगे तो व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग यू वांट टू हैव। नॉट एवरी पर्सोना नीड्स एन एक्सपीरियंस गोल। फिर वही बात जो मैंने शुरू में की कि ज़्यादा एंड गोल्स होंगे, एक्सपीरियंस और लाइफ गोल्स कम होंगे। तो यस हो सकता हो, लेकिन नॉट नेसेसरी एवरी पर्सोना नीड टू हैव अ एक्सपीरियंस गोल। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। डेटा से अगर आ तो फिर तो ठीक है, अगर डेटा से नहीं आ रहा तो फिर सेंस नहीं बनेगा। और इसकी एग्जांपल भी है। तो फॉर एग्जांपल यस एंग्जाइटी विद टेक्नोलॉजी, तो ऐसी सूरत में तो आप डालें, लेकिन अगर नहीं है तो जबरदस्ती नहीं हमने करना कि नहीं, देयर हैज टू बी सम एक्सपीरियंस। सेंटर अराउंड द प्रोडक्ट डोमेन, उसके साथ लिंक करेंगे कि आप किस डोमेन में काम कर रहे हैं। ये ई कॉमर्स की ऐप है या गेम है, अब इन दोनों के जो एक्सपीरियंसेस है बड़े डिफरेंट है। इफ यू आर डूइंग कस्टम विजुअल डिजाइन एक्सपीरियंस को, दैट माइट हेल्प यू टारगेट टाइप स्टाइल विजुअल एलिमेंट सो दैट दे कन्वे द राइट मैसेज। तो उस सूरत में चूंकि ये बैंकिंग ऐप है इसलिए आपको ऐसा करना। ठीक है, तो फिर यस